سائنس آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں اسموک سے نمٹنے کے لیے پیش بندی۔ پنجاب میں گاڑیوں سے مضر دھوئیں کا اخراج ٹیسٹ لازم قرار۔ موٹر سائیکل کے اخراج ٹیسٹ کی فیس 100 روپے مقرر کر دی گئی، جبکہ رکشہ مالکان کے لیے ٹیسٹ فیس 300 روپے رکھی گئی ہے اور 1000 سی سی تک گاڑیوں کا اخراج ٹیسٹ 500 روپے میں ہوگا۔ اسموگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات۔ پنجاب میں گاڑیوں سے مضر دھوئیں کا اخراج ٹیسٹ لازم قرار دے دیا گیا۔ موٹر سائیکل کے اخراج ٹیسٹ کی فیس 100 روپے مقرر کی گئی ہے۔ رکشہ مالکان کے لیے ٹیسٹ فیس 300 روپے جمع کرانا لازمی ہوگی۔ 1000 سی سی تک کاروں کے اخراج ٹیسٹ کی فیس 500 روپے ہوگی۔ 1000 سے 1500 سی سی گاڑیوں کی ٹیسٹ فیس 800 روپے مقرر کی گئی ہے۔ 1500 سے 2500 سی سی گاڑیوں کا اخراج ٹیسٹ 1000 روپے میں ہوگا۔ 2500 سے 4500 سی سی گاڑیوں کا ٹیسٹ 1500 روپے میں ہوگا۔ 4500 سی سی سے زائد گاڑیوں کی فیس 2000 روپے مقرر کی گئی۔ ڈی جی ماحولیات پنجاب کا کہنا ہے کہ تمام فیسیں سرکاری اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی۔ گاڑی مالکان کو احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ لاہور کی سڑکوں پر اینٹی اسموک گنز انیکشن ہے۔ جیل روڈ پر اینٹی اسموک گنز کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ فضائی آلودگی کی شرح 179 سے کم ہو کر 162 ہو گئی۔ جیل روڈ پر عملی مظاہرے کے دوران اینٹی اسموک گن سے پانی کا اسپرے کیا گیا۔ فضائی معیار جانچنے کے لیے AQMS سسٹم استعمال کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق اینٹی اسموک گنز کے چھڑکاؤ سے نہ صرف فضا میں موجود آلودگی میں کمی واقع ہوئی بلکہ مہلک ذرات بھی زمین پر بیٹھ گئے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ساجد بشیر کا کہنا ہے اینٹی اسموک گن اسپرے سے فضائی آلودگی میں واضح کمی ریکارڈ ہوئی۔ PM10 کی شرح 179 سے کم ہو کر 162 اور PM2.5 کی شرح 100 سے کم ہو کر 54 تک آ گئی۔ رپورٹس کی بنیاد پر ان علاقوں میں گنز استعمال کی جائیں گی جہاں AQI کی شرح زیادہ ہوگی۔ ہمارا جو PM10 کا ڈفرنس آیا ہے وہ 179 سے 126 آیا ہے، اور جو ہمارا PM10 کا ڈفرنس تھا وہ 100 سے لے کے 54 کا ڈفرنس آیا ہے۔ اب اس انالیسس سے ہمیں یہ ہیلپ ملے گی کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے کس ایریا میں کتنی اسپرنکلنگ کتنی دیر کے لیے کر رہی ہیں۔ ساجد بشیر کے مطابق ابتدائی طور پر ایک اینٹی اسموک گنز کے 4 سائیکل مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ اقدام شہر میں بڑھتی فضائی آلودگی پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہم نے جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان کے اوپر کنٹینیوس جو ہمارا آپریشن ہے وہ چل رہا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر جیل روڈ کا ایک چکر لگا لیے تو رک گئے۔ ہم نے ایک فوگ کینر مشین کے 4 سائیکل جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے ہیں اور 4 سائیکل کو پورے کرے ہیں۔ لاہور میں بڑھتی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اینٹی اسموک گنز کا تجربہ مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے، جس کی کامیابی مزید علاقوں میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی راہ ہموار کرے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ معافی نہیں مانگیں گی، معافی آپ کے ترجمان مانگے۔ مریم نواز نے پیپلز پارٹی کو 2 ٹوک جواب دیا۔ کہتی ہیں مجھ سے معافی منگوانے کے لیے واک آؤٹ کیا گیا، پنجاب پر بات کرو گے تو زوردار جواب ملے گا۔ پنجاب کو اپنے پیسوں سے نہریں نکالنے کی اجازت نہیں دی، لوگوں کو سڑکوں پر نکالا کیا یہ صبایت نہیں؟ دوسرے صوبوں میں مصیبت آئی تو پنجاب ساتھ کھڑا تھا، پنجاب میں سیلاب آیا تو زخموں پر نمک چھڑکا گیا، پریس کانفرنس کر کے جھوٹ بولا کیا، مذاق اڑایا کیا؟ آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ واک آؤٹ کر رہے ہیں، مریم نواز شریف معافی مانگے۔ بھئی مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے۔ باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار جواب ملے گا۔ پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی، ہمیں اجازت نہیں دی۔ وہ پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا، لوگوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پہ نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو، تب اس کو صوبائیت نہیں کہتے۔ پنجاب میں بدترین سیلاب آ گیا، پنجاب پہ آفت آ گئی، پنجاب پہ مصیبت آ گئی۔ ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ ہم ان کے اوپر پریس کانفرنسز کر کے الزامات لگاتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں۔ آئندہ پنجاب کے اوپر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ شاہدرہ سے راون اسٹیشن تک گرین کوریڈور منصوبہ منظور کر لیا گیا ہے۔ 40 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک کے ساتھ 1 ارب 77 کروڑ روپے سے گرین کوریڈور بھی بنے گا۔ 30 سائٹس کی نشاندہی کر دی گئی۔ منصوبہ 2 سال میں کمپلیٹ ہوگا۔ منصوبہ PHA مکمل کرے گا۔ پارکس، جوگنگ ٹریک، اوپن جم، واک ویز، سٹنگ ایریاز بھی بنیں گے۔ لاہور گرین کوریڈور پر 3 کنال سے 8 کنال تک ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ 30 سائٹس کی نشاندہی کر لی گئی۔ منصوبہ PHA مکمل کرے گا۔ 664 کنال پر گرین کوریڈور بنے گا۔ ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ پارکس بنیں گے، جوگنگ ٹریک، اوپن جم، واک ویز، سٹنگ ایریاز بنیں گے۔ چلڈرن پلے ایریاز، باؤنڈری فینسز،
बेंचेस, बैडमिंटन कोर्ट्स भी बनेंगे। रेलवे ट्रैक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा 2018 से बजट में शामिल था। मंसूबे के 4 मुख्तलिफ फेज होंगे, जबकि तकमील 2 साल में की जाएगी। मौजूदा हालात में PHA लाहौर के पास ग्रीन कॉरिडोर जैसा मेगा प्रोजेक्ट वाहिद मंसूबा होगा। मंसूबे का पहला पैकेज शादरे से रेलवे स्टेशन, जबकि दूसरा पैकेज रेलवे स्टेशन तक वाल्टन होगा। तीसरा पैकेज वाल्टन से कोट लखपत, जबकि चौथा पैकेज कोट लखपत से रायवन स्टेशन तक होगा। चंद रोज कबल PND ने मंसूबे के डिजाइन और फंड्स की बाकायदा मंजूरी दे दी है, जिसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस मुकम्मल करके मंसूबे पर काम शुरू किया जा सकेगा। दुर्रे नयाब, City 42। 9 सरकारी अस्पतालों को अद्वियात के लिए फंड जारी। चिल्ड्रन अस्पताल को 12 करोड़ 70 लाख रुपए मिले। जनरल अस्पताल 7 करोड़, PIC को 3 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए, जबकि सर्विसेज अस्पताल को 20 करोड़, म्यू अस्पताल को 2,60,000 मुंतकिल किए गए। इसी तरह कोट ख्वाजा, लेडी वेलिंगटन, लेडी HSN अस्पताल को भी फंड्स मिल गए हैं। महकमा खजाना ने लाहौर के 9 बड़े अस्पतालों को मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए बजट जारी कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल को 12 करोड़ 70 लाख रुपए, जिना अस्पताल को 7 करोड़ 60 लाख रुपए और जनरल अस्पताल को मुफ्त अद्वियात के लिए 7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह PIC को अद्वियात के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए, सर्विसेज अस्पताल को 20 करोड़ रुपए, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल को 2 करोड़ 50 लाख रुपए, म्यू अस्पताल को 2 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए हैं। लेडी वेलिंगटन अस्पताल को 2 करोड़ 40 लाख और लेडी HSN अस्पताल को 7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अस्पताल ये बजट मरीजों को मुफ्त अद्वियात देने पर खर्च करेंगे। सरकारी अस्पतालों में मेडिकल आलात का फुकदान है। अस्पतालों में 53,616 मेडिकल आलात की कमी है। 32 अस्पतालों में 6,812 आलात दस्तयाब हैं। शोबा डेंटल में सिर्फ 118 आलात मौजूद हैं, जबकि 27,747 की अशद ज़रूरत है। फिजियोपैथोलॉजी, आंखों के शोबे भी लावारिस हैं। जामे सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। सरकारी अस्पतालों से मेडिकल आलात की कमी दूर की जाएगी। DHQ अस्पतालों में मेडिकल आलात का फुकदान दूर करने का हुक्म दे दिया गया। अस्पतालों में आलात की कमी दूर करने के लिए जामे सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 32 अस्पतालों में 6,812 आलात दस्तयाब हैं, जबकि अस्पतालों में 53,616 मेडिकल आलात की कमी है। OT कम्प्लेक्स में 758 आलात मौजूद हैं, जबकि अस्पतालों को 9,615 आलात दरकार हैं। डेंटल डिपार्टमेंट में सिर्फ 118 आलात दस्तयाब हैं, जबकि 27,743 आलात की जरूरत है। आंखों के शोबा के पास 229 आलात मौजूद हैं, जबकि 559 आलात की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों के फिजियोथेरेपी यूनिट में 179 आलात मौजूद हैं और 646 आलात की कमी है। पैथोलॉजी के शोबे में 564 आलात दस्तयाब हैं, जबकि 459 आलात मतलूब हैं। DHQ अस्पतालों में ENT में सिर्फ 3 आलात मौजूद हैं, जबकि वहां 445 आलात की जरूरत है। हुक्काम का कहना है कि पंजाब हुकूमत जल्द मेडिकल आलात की खरीदारी का आगाज करेगी। अब लर्नर लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस और मुकदमात का अंदराज रोड पर हो सकेगा। मोबाइल थाने और लाइसेंसिंग यूनिट की 118 गाड़ियां लाहौर समेत पंजाब भर के लिए तैयार की जाएंगी। पंजाब भर में 20% गाड़ियां सिर्फ खातिन के लिए मखसूस की जाएंगी। मोबाइल यूनिट में 2 ट्रैफिक एहलकार, ड्राइविंग लाइसेंस, जबकि 2 ज़िले एहलकार FIRs के इंदराज के लिए मौजूद होंगे। शहरियों को घर की दहलीज पर ड्राइविंग लाइसेंस और FIR के अंदराज की सहूलत देने के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की 34 वैन्स तैयार कर ली गई हैं, जिनमें खवातीन के लिए मखसूस पिंक रंग की 6 गाड़ियां तैयार की गई हैं। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट से शहरी अपने लर्नर लाइसेंस, रिन्यूअल और रेगुलर लाइसेंस बनवा सकेंगे। रेगुलर लाइसेंस के लिए AI बेस्ड ड्राइविंग टेस्टिंग कार भी साथ होगी। हमारी सड़कों पे जो डिसिप्लिन है या जो बाकी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जब हम सीख के गाड़ी चलाएंगे तो वो ज़्यादा उन मसाइल का हल हो सकेगा। ये जो गाड़ियां हैं ये वो तमाम सर्विसेज फराहम करेंगी जो आपको हमारे लाइसेंसिंग स्टेशन पे मिलती हैं, जिसमें आप लर्निंग परमिट बनवा सकते हैं, आप अपना रेगुलर लाइसेंस बनवा सकते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हैं, अपना लाइसेंस अपग्रेड करा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट्स जिस थाने की हुदूद में जाएंगी, GPS के जरिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क से मुंसलिक हो जाएंगी। खवातीन जो हैं उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं। खवातीन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कॉलेजेस हैं, उसके लिए पिंक वैन्स हैं। पहले फेज़ में भी हमारे पास 6 पिंक वैन्स हैं जो स्पेसिफिकली खवातीन की सहूलत के लिए
اور ان اداروں میں جہاں پہ خواتین زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں وہاں پہ جائیں گی۔ شہری موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ سے تھانے کے فرنٹ ڈیسک کی تمام سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے ٹریفک پولیس کوشاں ہے۔ انیشلی ہم نے پلان کیا ہے کہ 118 گاڑیاں ہوں گی اور پھر ڈپینڈنگ اپون دا رسپانس جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سہولت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے مطابق اس کی تعداد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ شیڈول کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں بھجوائی جائیں گی۔ رواں ماہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے افتتاح کے بعد 34 گاڑیاں فیلڈ میں بھجوا دی جائیں گی۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ علی ساہی، سٹی 42۔ کہ شہر میں ڈینگی کی بھرمار ہے۔ ڈینگی وائرس سے متاثرہ 19 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال سرکاری طور پر ڈینگی بخار کے اب تک 275 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ راولپنڈی متاثر 26 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 1657 ہو گئی۔ مچھروں کی افزائش میں اضافہ، پنجاب میں ڈینگی وائرس کے حملے جاری ہیں۔ لاہور میں ڈینگی بخار کے 19 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ صوبہ بھر میں سرکاری طور پر ڈینگی وائرس سے 63 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ راولپنڈی میں ڈینگی سے سب سے زیادہ 26 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد، ساہیوال میں ڈینگی بخار کے 4 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ اٹک، جہلم، قصور، مری اور شیخوپورہ میں ڈینگی بخار کا ایک مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں رواں سال ڈینگی بخار کے اب تک 275 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 1657 ہو گئی۔ مارکیٹ میں پاؤڈر جیسی چینی آ گئی۔ پرچون فروشوں کو غیر معیاری چینی دی جانے لگی۔ سرکاری قیمت 177، ہول سیل ریٹ 180 روپے مقرر ہے، جبکہ مٹن کا سرکاری نرخ 1600 ہے اور بازار میں 24 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح بیف 800 کی بجائے 1200 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ شہر میں غیر معیاری چینی کی ترسیل کی جانے لگی۔ چینی کی سپلائی کے حوالے سے دکانداروں اور صارفین کی شکایات دور نہ ہو سکی۔ پرچون فروشوں کو مہنگے داموں باریک پاؤڈر جیسی چینی دی جانے لگی۔ کریانہ فروشوں کے مطابق چینی کی کوالٹی کھانے کے قابل نہیں۔ چینی کی سرکاری قیمت 177 اور ہول سیل 180 روپے مقرر ہے۔ اسی طرح آٹے کی ترسیل بھی تاخیر کا شکار ہے۔ فلور ملز نے مطالبات کی منظوری کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے اور مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں ہڑتال کی دھمکی دی ہے۔ جو میں نے آج چینی منگوائی ہے پاؤڈر جیسی چینی ہے، جو مجھے توڑا ریٹ پڑا ہے 177 گورنمنٹ والا پڑا ہے، اس پہ میں نے کرایہ بھی دینا ہے، اس پہ میں نے شاپر بھی لگانا ہے، یعنی میں اگر اس کو سیل کروں گا تو 2 روپے لاس پہ سیل کروں گا۔ آٹا نہیں آ رہا، آٹا آرڈر لے کے بھی جاتے ہیں، آٹا بیچتے نہیں ہیں۔ دوسری جانب برائلر گوشت مزید 14 روپے کلو مہنگا ہوا۔ برائلر گوشت 2 روز میں 22 روپے کلو بڑھا ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت 446 روپے کلو ہو گئی۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق زندہ برائلر تھوک 294، پرچون 308، فارم ریٹ 280 روپے کلو مقرر ہے۔ صدر لاہور پولٹری سیلرز نے آئندہ 2 روز میں برائلر گوشت کی قیمت میں 30 سے 40 روپے مزید اضافے کا عندیہ دیا ہے۔ زیادہ تر رسل و طلب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس وجہ سے ریٹ کے کم بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کو چوزا جو پڑا ہے یہ 40 روپیز والا چوزا ہے، تب اس کے ریٹ کم تھے۔ آپ اس کو 20-30 روپے چوزا لینے کو بھی تیار نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے ریٹ بہت کم مارکیٹ میں جا رہے ہیں، فارموں کو لاس ہو رہا ہے۔ شہریوں کو مٹن اور بیف بھی سرکاری نرخوں میں دستیاب نہیں۔ مٹن کا سرکاری نرخ 1600 روپے مقرر ہے، جبکہ بازار میں 2400 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح بیف کا سرکاری نرخ 800 روپے ہے، جبکہ بازار میں 1200 روپے تک بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیسکو سسٹم سے اربوں کی بجلی غائب ہو گئی۔ بجلی چوری اور بوسیدہ سسٹم کی وجہ سے 1 ارب 69 کروڑ یونٹ ادھر ادھر ہو گئے۔ 13 ارب روپے کا چونا لگ گیا۔ ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو لائن لاسز قیمت میں اربوں روپے کا خسارہ ہوا ہے۔ 6 ماہ کے دوران لائن لاسز کی شرح 12.38% تک ریکارڈ کی گئی۔ لیسکو کے سسٹم سے اربوں روپے کی بجلی غائب ہو گئی۔ لیسکو میں بجلی چوری اور بوسیدہ سسٹم کی وجہ سے 1 ارب 69 کروڑ یونٹس غائب ہوئے۔ بجلی چوری اور بوسیدہ سسٹم کی وجہ سے 6 ماہ کے دوران کمپنی کو 13 ارب روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ دستاویزات کے مطابق لیسکو کو ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو لائن لاسز کی مد میں اربوں روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا ہے۔ کمپنی کی 6 ماہ کے دوران لائن لاسز کی شرح 12.38% تک ریکارڈ کی گئی۔ دستاویزات کے مطابق لیسکو نے CPPA سے 13,724 ملین یونٹس کی خریداری کی۔ خریداری کے بعد 12,026 ملین یونٹس فروخت کیے جا سکے، جبکہ 16 ملین یونٹس غائب ہو گئے۔
ठेकेदारी स्कूलों में कम तालीम याफ्ता टीचर्स लगाने का इंकशाफ हुआ है। 21% प्राइवेट असातिज़ा मैट्रिक और इंटरमीडिएट निकले। 76% के पास टीचर ट्रेनिंग के हवाले से कोई इजाफी कोर्स या डिग्री मौजूद नहीं, जबकि 36% के पास बैचलर और 38% के पास मास्टर की डिग्री पाई गई। ठेके पर दिए गए सरकारी स्कूल में कम तालीम याफ्ता असातिज़ा भर्ती किए गए। 21% प्राइवेट असातिज़ा की तालीमी काबिलियत मैट्रिक और इंटरमीडिएट है। सिर्फ 24% ने टीचर ट्रेनिंग की डिग्री या कोर्स कर रखा है। सरकारी स्कूल्स में कम तालीम याफ्ता अफराद का तलबा को पढ़ाने का इंकशाफ हुआ है। ठेके पर सरकारी स्कूल चलाने वाले असातिज़ा में से 76% के पास टीचर ट्रेनिंग के हवाले से कोई इजाफी कोर्स या डिग्री मौजूद नहीं। 36% के पास बैचलर, 38% के पास मास्टर की डिग्री है। एमफिल की डिग्री 3% असातिज़ा और PhD की डिग्री सिर्फ 8.5% असातिज़ा के पास है। 10,000 से ज्यादा प्राइवेट किए गए स्कूल्स में 18,187 असातिज़ा काम कर रहे हैं। ये स्कूल्स के असातिज़ा को 1481 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से 20,000 तनख्वाह देते हैं। आपको बताएं कि मौलाना शौकत अली रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से मौलाना शौकत अली रोड पर अंधेरों का बसेरा है। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों को रात के औकात में सफ़र करने में मुश्किलात दरपेश हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। पुलिस में मौजूद हूँ मौलाना शौकत अली रोड पर, जहाँ पर अगर बात कर ली जाए रोड लाइट्स के गैर फ़ाल होने की, तो यहाँ पर एक अरसे से रोड लाइट्स जो है वो गैर फ़ाल हैं, जिसके सबब यहाँ पर तमाम राहगीरों को गुजरने में शदीद मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। वो इंतज़ामिया से दुआई देते नज़र आते हैं कि खुदारा यहाँ पर करोड़ों रुपए की मालियत से लगने वाली रोड लाइट्स जो है वो उनको फ़ाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर रात के औकात में इस कदर जो है वो अंधेरा होता है कि यहाँ से गुजरते हुए जो है वो खौफ आता है, और यहाँ से गुजरने का तसव्वुर जो है वो इंसानों के लिए, तमाम राहगीरों के लिए जो है वो परेशान कुन सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर चोरी डकैती और दीगर वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, जब उनका ये भी कहना है कि रोड लाइट्स ना होने के सबब हादसात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसे इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से होश के नाखुन है और रोड लाइट्स को जो है वो फ़ाल करे, क्योंकि यहाँ पर पोल जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, पहले से ही मौजूद हैं, और यहाँ पर लाइटें जो है वो पहले से लगी हैं। सिर्फ उनको जो है वो फ़ाल करना है। उनका कहना है ये कि अगर उनको फ़ाल कर दिया जाएगा तो उम्मीद है कि रात के औकात में ये सड़क जो है वो दिन का सा मंजर पेश करेगी और तमाम गुजरने वाले राहगीर जो है अपना सफ़र जो है वो बासानी जो है जारी रख सकेंगे। जी इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। केनाल रोड पर बनाए क्रॉसिंग पुल खतरे की इलामत बन गए। हरबंसपुरा से BRB तक बनाए गए क्रॉसिंग पुल खस्ता हाली का शिकार हैं। क्रॉसिंग पुल्स के तरह हिफाजती दीवारें गायब है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। क्या मुतालबा है शहरियों का, बताएंगी आदिया नाज। जी आदिया। तो केनाल रोड पर बनाई गई क्रॉसिंग ब्रिज जो है वो ख़तरे की इलामत बन रहे हैं, ख़ास तौर पर रात के वक्त में, क्योंकि अंधेरा होता है। मौजूद है हम प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम के बिल्कुल सामने मौजूद जो ब्रिज है, क्रॉसिंग ब्रिज इसको कहते हैं, और आम अल्फाज में इसको पुलिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, जो कि गाड़ियों के आने और जाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आप कलमा चौक से आ रहे हैं तो उस रोड से दूसरी जानिब जाने के लिए ये पुलिया जो है वो बनाई गई है। इसके ऊपर हैवी ट्रैफिक का आना जाना है, ख़ास तौर पे बड़ी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से गुजर रही हैं, मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजर रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर यहाँ से गुजर रहे हैं। और होता यही है कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा तंग है, सिंगल गाड़ी जो है वो जाने की जगह है, लेकिन इसमें आने जाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। इसकी जो साइड रेलिंग है वो भी नहीं बनाई गई है। खुदा न खास्ता चूँकि नहर है, रवा है, खुदा न खास्ता रात के वक्त में जो है कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है, कोई मोटरसाइकिल जो है वो हादसे का शिकार हो सकती है। चूँकि अंधेरा है और आने जाने के लिए कुछ भी इस वक्त में जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक भी इस हवाले से जो है, अगर इस हवाले से अपडेट करें तो ट्रैफिक भी जाम रहना जो है मामूल बन चुका है। जी आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन से गुजरात की सियासी और समाजी शख्सियात के वक्त की मुलाकात हुई, जबकि PTI समेत दिगर सियासी और समाजी शख्सियात का पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन चौधरी शाफिर हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग हाउस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन से गुजरात की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात के वक्त मुलाकात की। वक्त की क़यादत चौधरी रिजवान दिलदार कर रहे थे। इस मौके पर PTI समेत दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली गुजरात की सियासी और समाजी शख्सियात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया।
स्मोक के तदारुक को कंट्रोल के हवाले से इजलास का इनेकाद सदारत वज़ीर ज़राअत से दाशुक हसन किरमानी ने की। इजलास में स्मोक के खात्मे के लिए मुरतब करदा प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी के ज़ेर सदारत स्मोक के खात्मे के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सऊद समेत महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली और महकमा ज़राअत पंजाब के अफसरान भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना था कि महकमा ज़राअत और महकमा माहौलियात की टीमें स्मोक एक्शन प्लान पर मनोअन अमल यकीनी बनाएं। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलमा रफ़ी के ज़ेर सदारत इजलास नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। चिल्ड्रन अस्पताल 2 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज़ बनेगा। बोले मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक लैब बनाई जाएगी। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ क्वार्टर सलमा रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया गया। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल 2 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज़ बनेगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात हुई है। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकामात भी जारी किए। ASI मोहम्मद अफसाल की ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत जारी की है। लेडी कांस्टेबल ज़ैनब लतीफ़ की कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त पर DPO शेखपुरा को रिलीफ का हुक्म जारी किया। गाजी कांस्टेबल शाहिद अली की माली इमदाद की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत जारी की। अब यहाँ पर आपको बताएं, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन कंपनी आईटेल के नए ब्रांड सुपर 26 अल्ट्रा मोबाइल की तकरीब रूनुमाई हुई। कंट्री हेड रिचर्ड और ब्रांड एम्बेसडर सजल अली ने शिरकत की। जौहर टाउन में वाक़या निशात होटल में आईटेल मोबाइल कंपनी के नए ब्रांड सुपर 26 अल्ट्रा की तकरीब रूनुमाई सजाई गई। आईटेल के कंट्री हेड रिचर्ड और ब्रांड एम्बेसडर अदाकारा सजल अली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मार्केटिंग हेड आईटेल अब्दुल्ला कुरैशी समेत दीगर ओहदेदारान, सेल्स पार्टनर्स, मोबाइल रिटेलर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कंट्री हेड आईटेल मिस्टर रिचर्ड ने सुपर 26 अल्ट्रा मोबाइल की रूनुमाई की। कहा आईटेल को 80 मुमालिक में 3600 मिलियन सार्फिन का एतमाद हासिल है। आईटेल का इंतखाब करने पर तमाम सार्फिन के ममनून हैं। We introduced this S26 Ultra product. I'd like to tell you some story about ITEL brand globally and also in ITEL, Pakistan. So we were founded in 2008. So ITEL has journeyed 18 years, and then now we have been the #1 globally brand in terms of smartphone under $75. हेड मार्केटिंग अब्दुल्ला कुरैशी ने सुपर 26 अल्ट्रा मोबाइल के हवाले से शुरका को ब्रीफिंग दी। कहा लोग कम कीमत में 6 साल गारंटी के साथ सुपर 26 अल्ट्रा खरीदें और महंगे मोबाइल फोन्स में मौजूद तमाम फीचर्स के मजे लें। ब्रांड एम्बेसडर सजल अली ने भी आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा की खसूसियात बयां की। आप ड्यूरेबिलिटी की जब बात करते हैं, आपका तो शायद हफ्ते में 3-4 दफा गिरता है, मेरा हर दिन 3-4 दफा फोन गिरता है। अच्छा, शूट पे देयर वाज आई विश आप लोगों को BTS दिखाते जहाँ पे हम लोग फोन बार-बार गिरा रहे थे एंड आई वाज एक्चुअली स्कैर्ड ये क्या टूट जाएगा। मैं शुरू के 3-4 टेक बड़े प्यार से मैं गिरा रही थी, उसके बाद मैंने धड़ाधड़ गिराया और नहीं टूटा। So that's the best part of this phone. #1 durable source display smartphone under 50K price range, which is immense, which gives that not only we believe in our quality, but other tech platforms in Pakistan, one of the biggest platforms in Pakistan, also endorses the fact that it is the smartphone. आईटेल मोबाइल सुपर 26 अल्ट्रा की कीमत 49,999 रुपए मुकर्रर की गई है। आईटेल इंतजामिया का कहना है कि इस कीमत में सुपर 26 अल्ट्रा मार्केट में सबसे बेहतरीन इंतखाब साबित होगा। तकरीब के अख्ताम पर शुरका में बजरिया कुरानंदाजी इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर की बड़ी बेटी ज़ेब-उन-निसा बेगम, जिनका मकबरा चबुर्जी के करीब समनाबाद चौक में वाक़या है। मकबरा किस हालत में है और सियाहों को वहां तक रसाई मुमकिन भी है या नहीं, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
15 फरवरी 1638 को दक्कन के शहर दौलता आबाद में पैदा होने वाली ज़ेबुन्निसा एक ऐसी बाकमाल खातून जो ना तो मुगलिया सल्तनत में हाकिम रहीं और ना ही आला ओहदों पर फाइज रहीं, लेकिन नेक नामी और शोहरत ऐसी के मुगलिया सल्तनत के शहजादे और शहजादियों में से किसी को नसीब ना हुई। ज़ेबुन्निसा बेगम की खूबसूरती, दराज कद, स्याह गेसू और आफताबी मुखड़े की तारीफ हिंदुस्तान के हर तारीखदान और मौरख ने की। मुगल शहजादी की सीरत और इल्म अदब के लिए काविशों का एतराफ तो बरतानवी कलमदानों ने भी किया। 1702 में वफात पाने वाली ज़ेबुन्निसा के मकबरे से मुतालिक मौरखीन में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज का कहना है कि ज़ेबुन्निसा को दिल्ली में दफन किया गया और बाज का मानना है कि ज़ेबुन्निसा का मकबरा लाहौर में है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के ट्रैक की तामीर से कबल ज़ेबुन्निसा के मकबरे की हालत मखदूश हो चुकी थी। 2017 के बाद मकबरे की बहाली और मरम्मत का काम किया गया। स्पेशली काम इसका ऑरेंज लाइन के शुरू होने से शुरू हुआ। इससे पहले इसकी हालत बहुत खस्ता हाल थी और ये बिल्कुल खंडरात बना हुआ था। यहाँ कोई जाली और कोई दरवाज़ा नहीं था। मवाली यहाँ रात दिन बैठे होते थे और कोई पुरसान हाल नहीं था। मकबरे की बहाली के लिए लाल पत्थर बजरिया दुबई इंडिया से मंगवाया गया। जालियां मुकामी तौर पर तैयार की गईं। फर्श और लाइटिंग का काम भी किया गया। यहाँ का प्लस्तर, यहाँ की जालियाँ, यहाँ का फर्श 2017 में बाकायदा ये बनाया गया है और ये नई डेवलपमेंट दोबारा से असर नौ हुई है। जालियों के बारे में बताएं। जालियों के बारे में ये है कि सारे मज़दूरों ने चबुर्जी का और यहाँ का जितनी भी जालियाँ हैं वो यहाँ बैठ के बनाई ठेकेदार की मौजूदगी में और एक एक जाली पर लाखों रुपया अखराजात आए। ये जो जालियाँ लगी हुई ये 1,20,000 रुपये एक एक जाली पे खर्चा हुआ। महकमा आसार कदीमा के जेर इंतजाम मकबरे की मौजूदा हालत अबले रहम है। दीवारों का सीमेंट उखड़ रहा है, दरवाजों और दीवारों का रंग खराब हो चुका, ना ही लाइटिंग का इंतजाम है। स्याहों ने मकबरे का रुख करना छोड़ दिया। बाज मुर्रखीन के मुताबिक ये मकबरा शाहजहां के दौर में अहला ओहदेदार अफजल खान अलाई का है। बाज जगहों पर इसे मियाँ बाई फखरुन्निसा से मंसूब किया जाता है। दर हकीकत ये मकबरा किसका है ये बताना मुमकिन नहीं। मकबरे की हालत ज़ार और तारीकियों में ये डूबा मकबरा इंतज़ामिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। जामिया मस्जिद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 11वीं शरीफ के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नात ख़वानों ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। जामिया मस्जिद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 11वीं शरीफ के सिलसिले में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मुफस्सिर कुरान मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ने खुसूसी खिताब फरमाया। तालीमे दीन के लिहाज से पहले आप जहां पढ़ाते थे अपने शेख अबू सईद मुखर्रमी, जिनको बाद लोग मखजूमी भी कहते हैं, उनकी दरसगाह के अंदर, लेकिन तुलबा के बढ़ जाने के बाद फिर फसीले शहर के बाहर क्लास लगाई गई और आपके जो डायरेक्ट शागिर्द हैं उनकी तादाद 1 लाख है और वो 1 लाख जो है उनमें से जो समझो सबसे आखिरी नंबर का शागिर्द है हमजा से करोड़ों से, वो भी भारी है। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात ख़वानों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। महफिल मिलाद में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम पेश किया। कैमरामैन नदीम के हमरा तुकीर अकरम, सिटी 42। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस स्टाफ एसोसिएशन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए महफिल सजाई। महफिल नात का तमाम दफ्तर डिप्टी कमिश्नर की मस्जिद में किया गया। नात खानों ने अक़ीदत के फूल निछावर किए। मोहम्मद इकबाल भट्टू, मोइन मुश्ताक हैदर, सदर मियां नईम, जनरल सेक्रेटरी उमैर अंजुम, सैयद हसन अब्बास बुखारी ने शिरकत की। राना नासिर, अनवर साजिद सिंधु समेत दीगर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल का हिस्सा थे। नात खानी के दौरान फ़ज़ा दरूद व सलाम से मुअत्तर रही।
माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के तहत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कार्बन मार्केट प्रोजेक्ट्स के फ़रोग़ के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। फ्लैटीज़ होटल में तकरीब का इनेकाद, सेक्रेटरी माहौलियात सलवत सईद की ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी माहौलियात सलवत सईद ने वाज़ा किया कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक चैलेंज है, लेकिन इसमें कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि आज के सेशन में हम अपने शराकतदारों से कीमती आरा ले रहे हैं ताकि प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल आप देखते रहिए सिटी पार्क।